how are you? I think you're all fit and fine, and now welcome again on my YouTube channel जिसका नाम है Max Elevation for every student. So now today we will start again a new topic of integration, which name is definite integral. Yes, definite integral is the topic. This topic is very important for your class 12th and competition exam, because in this topic we will learn how we integrate this type of problem in which you will see lower limit and upper limit like this. आप इस टॉपिक में इस तरह के क्वेश्चंस देखेंगे जिसमें लोअर लिमिट और अपर लिमिट आपको दिखाई देगी. इट इज कॉल्ड लोअर लिमिट, इट इज कॉल्ड अपर लिमिट, एंड दिस इज योर फंक्शन. एंड नाउ यू वांट टू इंटीग्रेट दिस वन. सो सपोज द इंटीग्रेशन ऑफ दिस वन इज कैपिटल fx, and now these are limits a and b. A is called lower limit, b and called upper limit. So now you substitute this limit, upper limit, after that lower limit, to by replacing this x. इस x को आप अपर लिमिट और लोअर लिमिट से रिप्लेस कर दो, बीच में माइनस साइन लगा दो, देन यू विल गेट आंसर लाइक दिस. अब एक क्वेश्चन हम करके दिखाते हैं आपको. सपोज करिए लिमिट है 1 से 2, लोअर लिमिट 1 है, अपर लिमिट 2 है, एंड इट इज योर फंक्शन x dx. इट इज वेरी सिंपल, यू नो दैट x का इंटीग्रेशन आप सभी जानते हैं, x स्क्वायर अपॉन 2 होता है, और ये लिमिट हो गई 1 से 2. I will tell you only the process through you will do this type of question of definite integral. Now you substitute here 2. It is called upper limit. So you will get 2 square minus lower limit means 1 square. पहले आपने यहाँ पर upper limit substitute करी, फिर माइनस साइन लगाया, फिर आपने lower limit substitute कर दी, and now you will reach to the answer, and your answer is come half. Why? Sorry, not half, it is 2 to the square, that is 4, minus 1, that is 3. So you will reach to your answer 3/2. So आपका आंसर आ गया 3/2. Now next question. Suppose this time you have 0 to pi by 2 sin x dx, and you know very well the integration of sin x is minus cos x. Okay, and now you substitute these limit, upper limit minus lower limit. So this minus sign as it is, upper limit माइनस लोअर लिमिट, एंड यू नो वेरी वेल कि cos pi by 2 की वैल्यू 0 होती है एंड cos 0 की वैल्यू 1 होती है. सो फाइनली आपका आंसर आ गया 1. आई थिंक यू अंडरस्टैंड दैट. एंड नाउ नेक्स्ट वन इज, समटाइम्स यू विल सी दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, e raised to power sin inverse x upon under root of 1 minus x square dx, and limit is 0 to 1. Now this time you will apply here substitution method. Why? Because it is e raised to power sin inverse x upon under root of 1 minus x square. So in this question you suppose that sin inverse x is equal to t, and the derivative of sin inverse x is 1 upon under root of 1 minus x square dx is equal to dt, because dt upon dx is coming here dx. Okay, so this value dx upon under root 1 minus x square become dt. तो आप जानते हैं, पहले से आपने पढ़ा हुआ है, पहले प्रीवियस वीडियो में आपको मैंने बताया हुआ है, सब्स्टिट्यूशन मेथड में इन दोनों की वैल्यू आ जाएगी dt, and now this question become e raised to power t dt. and now this thing is new. अब जो मैं आपको बता रहा हूं वो आपके लिए नई चीज है. यहां पर लिमिट थी 0 से 1 जब हम x के रेस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट कर रहे थे. अब हमें क्या करना है, यहां पर 0 है तो यहां 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे जहां पे हमने सपोज किया है, और sin क्रॉस 0 0 होता है, एंड देन यहां 1 है तो यहां 1 पुट करेंगे तो sin इनवर्स 1 वैल्यू होती है pi by 2 की. सो नाउ इट इज pi by 2. तो लिमिट यहां पर चेंज होती है. इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू. यहां पर ये इंपॉर्टेंट चीज है, लिमिट यहां पर चेंज हो गई. एंड नाउ यू नो वेरी वेल कि e raised to power t का इंटीग्रेशन e raised to power t ही होता है, एंड इट इज गिवन 0 से pi by 2. अब आप क्या करेंगे, अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे एंड माइनस साइन, फिर लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे, एंड यू नो वेरी वेल e raised to power 0 1 होता है, and your answer is e raised to power pi by 2 minus 1. it is your final answer of this question. तो इस तरह से आप फाइनल आंसर पे पहुंच जाएंगे. तो यहां पर इस वीडियो में मैं आपको डेफिनेट इंटीग्रल सिखाने वाला हूं. डेफिनेट इंटीग्रल के कुछ बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आपके सामने मैंने किए, बट अब मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से हम डेफिनेट इंटीग्रल के क्वेश्चंस को प्रॉपर्टीज के थ्रू करेंगे. मींस देयर विल मेनी टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन. इंटीग्रेशन की बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, उन प्रॉपर्टीज को मैं 1 by 1 आपको बताऊंगा और उन पर डिपेंडेंट क्वेश्चंस आपको बताने वाला हूं. तो अभी आपने इस पर्टिकुलर इन 3-4 क्वेश्चनों में क्या देख रहे हैं आप, इन क्वेश्चनों में केवल आप ये देख रहे हैं कि किस तरह से हमें लिमिट को
सब्स्टिट्यूट करना है। क्वेश्चंस होंगे हमारे इंडेफिनिट इंटीग्रल के, केवल नई चीज क्या होगी, लिमिट्स यहां पर इंक्लूड रहेगी। तो जब भी आप लिमिट सब्स्टिट्यूट करते हैं तो आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा, यहाँ पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना है पहली बात। और दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, बहुत ही आसानी कैलकुलेशन को आपको मिस्टेक नहीं करनी है, क्योंकि कैलकुलेशन इज वेरी सिंपल बट मेनी ऑफ द स्टूडेंट मेक सम मिस्टेक्स हियर। जब वो लिमिट्स को सब्स्टिट्यूट करते हैं तो कुछ मिस्टेक्स कर देते हैं, तो उस मिस्टेक से आपको बचना है और बिल्कुल सही तरीके से लिमिट्स को सब्स्टिट्यूट करते हुए कैलकुलेशन करनी है। So now let's see these all questions again. I will tell you the next one which is called properties of integration. Now अब मैं आपको properties of integration बताने जा रहा हूं। Properties of integration का मतलब है यहां पर मैं कुछ properties आपको बताऊंगा और उन पर डिपेंडेंट क्वेश्चंस वन बाय वन करता हुआ आपको बताता जाऊंगा कि किस प्रॉपर्टी पर कौन सा क्वेश्चन बनता है। इन प्रॉपर्टीज में से कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी होती है जिनमें बहुत से क्वेश्चन बनते हैं और उन प्रॉपर्टीज पर डिपेंडेंट क्वेश्चंस हमारे कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में आते हैं, बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं। सो नाउ यू सी वेरी सिंसियरली, क्योंकि ये प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज अगर आपको आ गई तो डेफिनेटली यू विल गेट द फुल मार्क्स इन दिस डेफिनेट इंटीग्रल टॉपिक। सो नाउ द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड P1 प्रॉपर्टी एंड दिस प्रॉपर्टी से यू, ये प्रॉपर्टी P1 इट इज ओनली द सिंबल। ये प्रॉपर्टी आपको ये कहती है कि सपोज करिए a टू b fx dx कोई इंटीग्रल है, आप इसको a टू b ft dt भी लिख सकते हैं और आप चाहें तो इसे a टू b fu du भी कह सकते हैं। यानी वेरिएबल को आप चेंज कर दो, x के रिप्लेस पर t लिख दो या u लिख दो, लिमिट्स अगर वही है तो इंटीग्रल पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये प्रॉपर्टीज मैं बाद में कई जगह काम में लूंगा जहां पर क्वेश्चन हमारा टी में कन्वर्ट हो जाता है, फिर मैं जस्ट उस टी वाले फंक्शन को एक्स में कन्वर्ट कर दूंगा और आपसे कहूंगा कि इस प्रॉपर्टी का मैंने वहां पर यूज किया। इट इज वेरी सिंपल। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप देखना चाहें तो आप कर सकते हैं, जैसे 0 to 1 है एक्स स्क्वायर dx है, या फिर 0 to 1 है टी स्क्वायर dt है, या फिर 0 to 1 है u स्क्वायर du है। तीनों का आंसर सेम ही आएगा, तीनों का जो आंसर आएगा यहाँ पर कैलकुलेशन करने के बाद सेम आने वाला है। ओके, नाउ प्रॉपर्टी नंबर सेकंड। अब प्रॉपर्टी नंबर सेकंड क्या है? प्रॉपर्टी नंबर सेकंड ये कहती है कि सपोज करो a टू b fx dx कोई इंटीग्रल है, अगर हम चाहें कई जगह आपको जरूरत पड़ेगी इसकी लिमिट्स को इंटरचेंज करने की, यानी अपर लिमिट लोअर की जगह आ जाए, लोअर लिमिट अपर की जगह आ जाए, कर दीजिएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा बाहर माइनस साइन जरूर आएगा इंटीग्रेशन के तरफ। तो इट इज कॉल्ड योर सेकंड प्रॉपर्टी। ये आपकी सेकंड प्रॉपर्टी बन गई। नाउ थर्ड प्रॉपर्टी। अब ये जो थर्ड प्रॉपर्टी है इसके लिए मैं मैक्सिमम बच्चों को ये बताता हूँ, स्टूडेंट्स को ये कहता हूँ कि थर्ड प्रॉपर्टी ऑलवेज यूज इन मॉडुलस फंक्शन, रैशनल फंक्शन और स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन। यानी मैक्सिमम तो मॉडुलस फंक्शन में काम आएगी, रैशनल फंक्शन भी हो सकता है या कोई दूसरे फंक्शन भी हो सकते हैं जिनमें प्रॉपर्टीज यूज होगी लाइक दिस। देखिए किस तरह से इस प्रॉपर्टी को हम यूज करते हैं। सपोज करिए a टू b ये fx dx कोई इंटीग्रेशन है, तो हम इसे ब्रेक करेंगे दो पार्ट्स में, a टू c fx dx और c टू b fx dx में, जहां पर हम कहने वाले हैं कि जो c वैल्यू है वो a से बड़ी और b से छोटी है, यानी a और b के बीच में कहीं पर फंसी हुई वैल्यू है c। तो हमने इसको दो इंटीग्रल में ब्रेक कर दिया। अब इसका यूटिलाइजेशन कहां होगा वो तो मैं अभी आपको क्वेश्चन करके बताऊंगा। उस क्वेश्चन पर हम, जैसा कि मैंने कहा कि हर प्रॉपर्टीज पर डिपेंडेंट मैं कुछ क्वेश्चंस आपको साथ साथ कराता रहूंगा। तो इस थर्ड प्रॉपर्टी पर किस किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं आई विल टेल यू, मैं आपको बताने वाला हूं। सो नाउ लेट्स सी अगेन दीज प्रॉपर्टीज। आप वापस से इन प्रॉपर्टीज को देख लीजिएगा। नाउ लेट्स सी दीज टू क्वेश्चंस। आपके सामने दोनों क्वेश्चंस हैं, दोनों मॉडुलस फंक्शन के क्वेश्चंस हैं। अब किस तरह से आप करिएगा इन क्वेश्चन को मैं बताता हूं। मॉडुलस के अंदर यहाँ x+2 है। सबसे पहले आप करिएगा x+2 को 0 और x की वैल्यू को फाइंड आउट करिएगा। तो x की वैल्यू आएगी -2। तो आप देख पाएंगे जो -2 है वो 100% -5 और +5 के बीच में ही आएगी, यानी आपको वही वैल्यू आएगी यहाँ पर जो इस इंटरवल के बीच में होगी, यानी इंटरवल के बीच में कहीं ना कहीं आएगी और यही वैल्यू आपकी c वैल्यू कहलाएगी। तो आपका ये a है, ये b है और ये c हो गया। तो हम इस इंटीग्रल को दो पार्ट्स में ब्रेक करेंगे, अब -5 से -2 और -2 से +5। ओके, ये दो पार्ट्स हमने कर दिए।
अब यहां देखिएगा, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आप कोई वैल्यू -5 से -2 के बीच में लेते हैं और यहां सब्स्टिट्यूट करते हैं, लाइक सपोज करिए आपने लिया -3 आपने लिया, यहां सब्स्टिट्यूट करा तो -3 + 2 यानी -1 आएगा। तो दिस मॉडुलस साइन गिव्स यू माइनस साइन, यानी माइनस का साइन आपको लगाना है क्योंकि यहां कैलकुलेशन करने पर माइनस आएगा। अब आप सोचेंगे सर माइनस क्यों लगाए, क्योंकि माइनस आप पहले से लगा लेंगे बाहर, एक ये माइनस में आ रहा है तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, जो कि आप नेचर जानते हैं, मॉडुलस फंक्शन ऑलवेज गिव्स यू पॉजिटिव वैल्यूज, इसलिए आपको एक माइनस पहले से यहां लगाना होगा। तो हमने यहां पर ये माइनस लगा दिया, ये माइनस लगा दिया और फिर लिख दिया हमने x + 2 dx। अब आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए -2 से 5 के बीच की, यहां पर जैसे आपने 0 सब्स्टिट्यूट कर दिया, जैसे आपने 1 कर दिया, 2 कर दिया, तो आप देखेंगे हर वैल्यू पॉजिटिव आएगी। तो नाउ यू राइट हियर पॉजिटिव साइन। तो अधिकतर मैं बच्चों को यही कहता हूं, यहां पर स्टूडेंट्स को यही कहता हूं, अगर लीनियर फंक्शन है तो हमेशा यहां माइनस लिखना और यहां प्लस लिख देना। अब उसके बाद हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे एज यूजुअल, जैसे आप जानते हैं x² 2 और 2 का इंटीग्रेशन होगा 2x, लिमिट्स है -5 से -2। सिमिलरली यहां पर भी करिएगा x² 2 और यहां आ गया 2x, यहां लिमिट्स है -2 से 5। अब जैसा कि मैंने कहा कि बहुत आसानी से यहां पर आप लिमिट्स को रखना है, बहुत ढंग से कैलकुलेशन करनी है। तो आप यहां पर जब -2 करेंगे तो -2² 4/2 और यहां -2 करेंगे तो 4 आएगा, फिर माइनस साइन -5 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 25/2 आएगा और यहां -5 करेंगे तो माइनस का 10 आएगा। अपर लिमिट करी, फिर माइनस का साइन लोअर लिमिट कर दी। सिमिलरली हियर यहां भी ऐसा करिए, यहां 25/2 + 10 आएगा, फिर माइनस साइन लोअर लिमिट करेंगे तो 4/2 -2 × 4 आएगा और फिर इसका हम कैलकुलेशन करेंगे जैसा कि आप जानते हैं, इट इज 2 × 4, 2 - 4 इज -2 और यहां भी करेंगे 10 × 20, 25 में से 20 गए तो 5/2, इस तरह से इसका कैलकुलेशन कर दिया। इधर भी करेंगे, ये हो जाएगा 20, तो यहां आएगा 20 and 45, 20 + 25 इज 45 और यहां आ जाएगा 2 × 4 एंड इट इज -2 +2 हो जाएगा यहां पर। एंड फाइनली यू विल गेट हियर 2 × 4 -4 -5 -9/2 और इधर हो जाएगा 2 × 4 49/2 एंड फाइनली यू विल रीच योर आंसर। ये 49 और 9 हो जाएगा 58/2 और ये हो जाएगा 29 एज योर आंसर। 29 आपका आंसर यहां पर आ जाएगा। नाउ लेट्स सी दिस क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया, अब उस क्वेश्चन को देखिएगा। प्रोसेस वही है जैसा कि मैंने कहा कि मॉडुलस के अंदर का जो वैल्यू है उसको 0 कर दीजिएगा, फैक्टराइजेशन कर दीजिएगा। देखो यहां फैक्टराइजेशन हो रहा है आराम से, x - 1 x + 1, तो x की 3 वैल्यूज निकल गई, 0 वैल्यू, 1 वैल्यू और -1 वैल्यू। ठीक है, अब हमारे इस इंटरवल में कौन सी वैल्यू इंक्लूड हो रही है, एक तो 0 हो रही है और एक 1 हो रही है, -1 नहीं हो रही क्योंकि -1 से स्टार्ट ही हो रहा है। तो आप इसको ब्रेक करेंगे, -1 से 0, फिर करेंगे 0 से 1 और फिर करेंगे 1 से 2। इस तरह से हमने 3 पार्ट्स कर दिए इस इंटीग्रेशन के। ध्यान से देखिएगा 1 बाय 1, -1 से 0 के बीच में -½ आपने लिया सपोज करिए और -½ को आपने यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दिया तो आपके पास आएगा माइनस का 1/8 और प्लस का 1/2। अब आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा तो ये आ जाएगा प्लस का साइन 3/8, यानी प्लस का साइन, मुझे प्लस के साइन से मतलब है तो प्लस का साइन यहां आ रहा है। अब आप आगे करिएगा 0 से 1 के बीच में हाफ यहां पर सब्स्टिट्यूट, तो ये बन जाएगा आपका 1/8 -½ तो ये हो जाएगा 8, 1 - 4 यानी यहां पर माइनस का साइन आ रहा है, माइनस का साइन आ रहा है यहां पर, ध्यान रखिएगा माइनस का साइन आ गया। आगे बढ़िएगा 1 से 2, 1 से 2 में 3/2 पुट करिएगा तो 3/2 यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे आप, 3/2 तो ये हो जाएगा 27/8 -3/2, 8 आएगा एलसीएम 27 एंड इट इज 12। अगेन पॉजिटिव साइन आ गया तो इट इज वेरी इंटरेस्टिंग फॉर अस, ये हमारे लिए बहुत इंटरेस्टिंग काम कर गया। पहला पॉजिटिव, फिर नेगेटिव और फिर पॉजिटिव। अब आप इसका इंटीग्रेशन कर लीजिएगा, x4/4, x का होगा x² 2, लिमिट्स है यहाँ पर -1 से 0। सिमिलरली यहाँ पर भी वही आएगा x4/4 x² 2, यहाँ पर लिमिट है 0 से 1 और यहाँ पर वापस वही इंटीग्रेशन x4/4 एंड x² 2, दिस टाइम लिमिट बदल गई 1 से 2
तो इंटीग्रेशन वही आ रहा है लेकिन लिमिट्स बदलती जा रही है। यहां सबसे पहले 0 करेंगे तो 0 आएगा टोटली, और -1 करेंगे तो 1/4 आएगा और 1/2 आएगा। ओके, सिमिलरली यहां पर 0 करेंगे तो सारा 0 हो जाएगा, और फिर पहले यहां पर अपर लिमिट है 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 1/4 -1/2 आएगा, और 0 सब्स्टिट्यूट करने पर 0 हो जाएगा, और यहां पर 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 16/4 -4/2 आएगा, फिर माइनस साइन 1/4 -1/2 आएगा, और फिर इसको सॉल्व कर लेंगे एंड यू विल गेट द आंसर। अगर आप सही से कैलकुलेशन कर लेंगे तो आपके आंसर पर आप पहुंच जाएंगे। और यहां पर अगर आप इसको देखेंगे तो 1/4 कैलकुलेशन पे यहां पर आएगा, और यहां पर आएगा 1/4 -1/2 दैट इज -1/4, यहां पर भी 1/4 ही आएगा। ये हो जाएगा 4 4 जा 16 एंड 4 2 जा 8 8 -4 दैट इज 4/2, यानी यहां पे 2 हो जाएगा, और फाइनली यहां पर 1/4 हो जाएगा। तो ये टोटली बन जाएगा 3/4 + 2 दैट इज 11/4 इज योर आंसर। तो फाइनली आपका 11/4 यहां पर आंसर आ जाएगा। तो ये दोनों क्वेश्चंस थे जो प्रॉपर्टी नंबर 3 पर डिपेंडेंट है। नाउ लेट्स सी दीस टू क्वेश्चंस अगेन। नाउ लेट्स सी दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पर, लिमिट है यहाँ पे 0.2 से 3.7। इट इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। जब भी आपके सामने इस तरह का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आए तो आप इस लिमिट्स को इस तरह से ब्रेक करिएगा, 0.2 से लेकर पहले 1 तक, फिर आप आइए 1 से लेकर 2 तक, फिर आप आइए 2 से लेकर 3 तक, और फिर लास्ट में 3 से 3.5 तक, 3.7 तक सॉरी। अब आपको सबको पता है कि 0.2 से 1 तक की जो वैल्यू है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आप सभी जानते होंगे। नहीं जानते तो मैं आपको बता देता हूं। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में सपोज करिए 1.2 है, तो 1.2 किससे ग्रेटर होता है वो वैल्यू यहां पर आती है, दैट इज 1। सिमिलरली 3.4 किस नियरर इंटीजर से ग्रेटर है, 3 से ग्रेटर है। ग्रेटर तो 2 से भी है, 1 से भी है, लेकिन जो सबसे नियरर है, जो सबसे नियरर इंटीजर है वो है 3। ऐसे ही -11.4 किससे ज्यादा ग्रेटर है, -12 से। सिमिलरली मैं अगर कहूं 5.6 किससे ग्रेटर है, तो आप कहेंगे सर 5 से। तो अब आप समझ गए होंगे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में हम किस तरह से वैल्यूज लिखते हैं। तो यहां पर 0.2 से 1 तक किससे ग्रेटर है, आई थिंक आप जानते होंगे 0 से, तो यहां 0 आ जाएगा। उसके बाद प्लस साइन 1 से 2 तक में, यानी 1.1 से लेके 1.9 तक किससे बड़ा होता है, 1 से, तो यहां 1 आ जाएगा। नेक्स्ट टाइम 2.1 से लेके 2.9 यानी 3 तक जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2, और सिमिलरली लास्ट 3 से लेके 3.7 तक की जो वैल्यू आएगी वो 3 आएगी, क्योंकि सारी वैल्यूज 3.1 भी 3 से ग्रेटर होगी, 3.2 भी, 3.3 भी, एंड सो ऑन। तो इस तरह से हमने ये वैल्यूज लिख दी। अब उसके बाद ये जो 0 हो गया, इसका हो जाएगा x, लिमिट है यहां से 1 से 2, इसका हो जाएगा अगेन x, लिमिट है यहां से 2 से 3, और इसका भी हो जाएगा x, लिमिट है यहां पर 3 से 3.7। तो ये 0 हो गया, 2 - 1 हो जाएगा यहाँ पे 1, यहाँ पे 3 - 2 1 हो जाएगा, और यहाँ पर 3.7 - 3 यानी माइनस का 0.7 हो जाएगा, मींस 0.7 हो जाएगा। तो ये 1 + 2 + 2.1, तो फाइनली आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 5.1। तो 5.1 इसका आंसर क्वेश्चन का आ जाएगा। तो आप समझ गए होंगे कि हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जब भी हमारे सामने आएगा तो उसके क्वेश्चन को हम किस तरह से करेंगे। ना इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करना चाहूंगा। आज के इस वीडियो में हमने देखा कि किस तरह से डेफिनेट इंटीग्रल की हमने 3 प्रॉपर्टीज को यूज किया, खासतौर पर थर्ड प्रॉपर्टीज। इस थर्ड प्रॉपर्टीज में हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और आपने देखा ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, और इससे पहले मॉडुलस फंक्शन आपने देखा, उसके बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं इस थर्ड प्रॉपर्टीज पर। अब आगे प्रॉपर्टी नंबर 4, 5, 6, 7 जितने भी रिमेनिंग प्रॉपर्टीज है वो भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट रोल रखती है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊंगा बाकी रिमेनिंग प्रॉपर्टीज। तो आप इस चैनल से जुड़े रहिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा, और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। सो नाउ इट्स टाइम टू ओवर दिस वीडियो, सो गुड बाय एंड टेक केयर।